to remember 10 points. In other cases, you have to remember only 4 to 5 points, but here you have to remember 10 points. What are the 10 points? First of all, the normal 6 points, that is superior, inferior, medial, lateral, anterior, posterior. So expanded ilium is superior, obturator foramen inferior, this pubic tubercle and anterosuperior iliac spine anteriorly, and this greater sciatic notch is posteriorly. Then symphysis pubis is medially, and this acetabulum laterally. These are 6 points. Then side of the acetabulum determines side of the bone. Hence it is a right-sided hip bone and it is a left-sided hip bone. That was the 7th point. Now even after holding this, if you just tilt it slightly anteriorly, there will be not anatomical position. If you tilt it like this, ऐसा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा टिल्ट के ऐसा हो जाएगा. So it will not anatomical position. थोड़ा सा भी इसको हम मिला रहे तो ये पूरा बॉडी हिल रहा है क्योंकि ये एकदम जंक्शनल पॉइंट है. Anatomical position largely disrupted by slightest movement. So you have to remember 3 more points. First point is this anterior superior iliac spine and this pubic tubercle will be in same vertical plane. Not vertical line minded, vertical plane. These two should be These two should be in same vertical plane. Then this iliac tubercle and this acetabular notch will be in same vertical line. Here I am not telling plane, it is in same vertical line. And the third adjustment is this symphysis pubis should be in median plane. This is our median plane, which divides our body into two symmetrical halves. So this symphysis pubis will be in median plane. So what are the 10 points? I am repeating. Expanded ilium superiorly, obturator foramen inferiorly, anterior superior iliac spine and pubic tubercle anteriorly, greater sciatic notch posteriorly, symphysis pubis medially, acetabulum laterally. Acetabulum, side of the acetabulum determines side of the bone. Then 3 adjustment. 1, this anterior superior iliac spine and pubic tubercle in same vertical plane. Then iliac tubercle and acetabular notch in same vertical line. Then pubis symphysis in median plane. Now, this may sound very difficult for some students. मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए 10 पॉइंट कैसे याद रखेंगे? तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा आसान करके ले सकते हैं. इसको आसान कैसे करके लेंगे? एक पॉइंट अगर हम याद रखेंगे, अगर बाकी सब भूल भी गए तो हाथ को ऐसा करना, you'll get a notch here. That notch should be locked with greater sciatic notch. So palm should cover acetabulum. So if you try to do this in this one, palm will not, even if it is locked at greater sciatic notch, palm will not be covered by palm. So it is not in proper hand. So I have to try it in different hand. Palm के अंदर आ रहा, left hand में. See, so it is a left sided. And after doing this, जैसे हम हैंडशेक करते हैं वैसा अगर हाथ रखे, ये लगभग एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाता है. हम हैंडशेक के लिए हाथ कैसे बढ़ाते हैं, वैसा अगर हाथ को रखे तो लगभग एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाता है. दिस इज ग्रॉस एडजस्टमेंट, जुगाड़. ये 10 पॉइंट अगर याद नहीं रखना है तो ये देसी जुगाड़, ठीक है. नाउ कमिंग टू द डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, I have holded here one female hip bone and male hip bone. How to differentiate between a female and male hip bone? So, if you see the obturator foramen is triangular. जैसे राइट लेफ्ट आइडेंटिफिकेशन होता है हिप बोन के लिए, मेल फीमेल भी आइडेंटिफिकेशन होता है. सो दिस वन इज ट्रायंगुलर and this one is oval. In case of male it is oval and in case of female it is triangular. Second thing, see the greater sciatic notch, it is shallow in case of female and it is deep in case of male. See the difference, मैं दोनों को एक साथ रख रहा हूँ तो difference समझ में आ रहा है. In case of male it is very deep and in case of female it is shallow. Okay. So these are two major differences. Other differences are, as per male individual have more physical activity, the muscle attachment points will be more prominent, more roughness on. In general, any male bone and female bone, common difference is that male bone will have more roughness and female bone will be smooth. Because on an average, male individual may have greater physical activity. It is not true for all the cases. There may be female athlete. The female athlete will also have a rough bone. Okay. कोई भरतनाट्यम करता है तो उसके हिप बोन रफ होगा क्योंकि उसके बहुत सारा डिफिकल्ट थाइस के, हैमस्ट्रिंग के सारे मसल्स के मूवमेंट्स होते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू ईच एंड एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज a bone, a combination of 3 bone, ilium, ischium and pubis. So hip bone is a gross name. It is not a scientific name. Its scientific name is innominate bone. Innominate, I-N-N-O-M-I-N-A-T, innominate bone. Each year there are different anatomical congress.
देयर आर डिफरेंट एनाटॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसका मैं मेंबर हूँ, डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग रहते हैं। अभी वहाँ पे कांग्रेस होता है, इंटरनेशनल भी होता है जहाँ पे सारे देश के लोग आते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ तय होता है, कुछ चीज़ तय नहीं हो पाता। जो चीज़ तय नहीं हो पाया इसका नाम क्या होगा, क्योंकि अभी तक डिस्प्यूट चालू है। ओके, डिस्प्यूट चालू है तो फिलहाल इसका नाम कर दिया अनामिका। जैसे समझो एक बच्ची का स्कूल के एडमिशन के टाइम पे घर पे अलग अलग जनों ने अलग अलग नाम रखा है, मम्मी ने, पापा ने, नाना ने, नानी ने, बट स्कूल में नाम देने के वक्त झगड़ा हुआ तो नाम रख दिया अनामिका। डिनोमिनेट मीन्स इज अनामिका, मतलब इसका कोई नाम नहीं है। ओके, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बोन। हियर यू कैन सी द upper 2/5 at acetabulum. All these 3 are united from 17 to 21 year age। ये ऑसिफिकेशन होता है। 17 के पहले इधर कार्टिलेज से जॉइंट रहता है, 17 के बाद धीरे धीरे ऑसिफिकेशन होता है। अपर 2/5 इज बिलोंगिंग टू इलियम, पोस्टीरियर 2/5 is belonging to ischium, and anterior 1/5 is belonging to pubis। 2/5, 1/5। Okay, so here it is a Mercedes like sign you'll get, which is the combination of joining point of these 3 bones. So coming to first ilium. Ilium, it has got 4 border. One upper border, on a broad sense it is called as iliac crest, but iliac crest and upper border is slightly different. Upper border is a thin line, and the extended version, if you take the thick part including the border, just medial and lateral to the border, you'll get an inner lip and outer lip, and here inner sloping surface and outer sloping surface. If we include this inner lip, outer lip, inner sloping surface, outer sloping surface, then this whole thing is called as iliac crest. Otherwise it is a thin line. The upper border is a thin line from anterior superior iliac spine to posterior superior iliac spine. While defining any border, may be humerus, may be it be hip bone, it is better to define it from the beginning point to the end point. जैसे हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं AB, PQ, MN, एक लाइन को डिफाइन करते हैं, ऐसे यहाँ पे anterior superior iliac spine to posterior superior iliac spine, that is the iliac crest और upper border. अब upper border के साथ लीप और स्लोपिंग सरफेस ऐड करते तो होता है iliac crest. Now this iliac crest or upper border is broadly divided into 2 parts, anterior 2/3 and posterior 1/3. It is sigmoid in shape. Sigmoid means S के जैसा, sigmoid in shape. Up anterior 2/3 is convex outside and posterior 1/3 is concave outside. Anterior 2/3 have got 2 lips, outer lip and inner lip. Posterior 1/3 has got 2 sloping surface, inner sloping surface and outer sloping surface. Anterior 2/3 receives the attachment of anterior abdominal wall muscles such as external oblique, internal oblique, transversus abdominis, and posterior abdominal wall receives the muscles of posterior abdominal wall such as psoas major, quadratus lumborum and transversus abdominis. But this transversus abdominis is common both in anterior wall and posterior wall, so it is common. It is extending from anterior 2/3 and extended up to posterior 1/3. Anterior 2/3 में भी है और posterior 1/3 में भी है transversus abdominis. Now here there is a ligament that is called as inguinal ligament from anterior superior iliac spine to pubic tubercle. There is a ligament that is called as inguinal ligament, where actually the muscles of anterior abdominal wall, like a calendar that they have told you in class, muscles of anterior abdominal wall take a turn here, and that concavity is the inguinal ligament. Okay, so muscles of anterior abdominal wall यहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे अटैच होने के बाद यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, और यहाँ पे इसका जो फ्री एंड ऑफ द मसल जो ऐसा कर्व हो रहा है, that is forming the inguinal ligament. The superior border हो गया. superior border के बाद हमने inguinal ligament देख लिया. वैसे there is anterior border. Anterior border is from anterior superior iliac spine up to acetabular margin. In between, what are the things? Anterior superior iliac spine के बाद है small notch, then anterior inferior iliac spine, then again a notch, and acetabular margin में आके खत्म हो रहा. This is anterior border. Now at this region there is origin of a muscle that is the longest muscle in a body, that is sartorius. Sartorius का origin यहाँ से हो रहा है. Now coming to the posterior border. Posterior border from posterior superior iliac spine, then there is a small notch, then posterior inferior iliac spine, and then greater sciatic notch में continue हो रहा है ischium. खत्म नहीं हो रहा, continue हो रहा है. यहाँ पे खत्म हो रहा है. यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है. It is continuous with the posterior border of ischium. So if you hold it wrong, you will tell all the things but wrongly. Anterior superior iliac spine, small notch, anterior inferior iliac spine. ऐसा ही तुम बोलेंगे यहाँ पे sartorius का origin. All the things will match, but you will just tell the wrong thing. So be cautious while holding this greater sciatic notch. Otherwise सब उल्टा हो जाएगा, लेकिन तुमको लगेगा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ. Okay, so superior border, anterior border, posterior border. इसके बाद जो border है, this border is called as intermediate border. This intermediate border is an inner surface and divides the inner surface into two broad area, one smooth area and one rough area. The smooth area is called as iliac fossa,
which gives origin to iliacus muscle. And this rough area, it is again divided into three parts. One is osseous. Here there is attachment of this sacra. So this is osseous part. ये थोड़ा कान के जैसा दिखता है तो ऑरिकल भी बोलते हैं इसको. देन इसके बाद दिस एरिया इज फॉर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रोइलियाक लिगामेंट. सो दिस इज लिगामेंटस पार्ट एंड दिस स्लोपिंग सरफेस, दिस इनर स्लोपिंग सरफेस इज फॉर psoas major. Outer sloping surface is for gluteus maximus and inner sloping surface is for psoas major. So now this border continue further as iliopubic eminence. This is ilium and this is pubis. So ilium और pubis ये जहाँ पे continue हो रहा है, यहाँ पे एक एमिनेंस है, मतलब ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है वापस ग्रेजुअली नीचे आ रहा है. ऐसा अगर कुछ एलिवेशन रहता है तो दैट इज कॉल्ड एज एमिनेंस. सो दिस इज इलियोप्यूबिक एमिनेंस एंड आफ्टर दैट देयर इज पेक्टिनेट लाइन एंड दिस पेक्टिनेट लाइन कंटिन्यूज एज द अपर बॉर्डर ऑफ pubis. Pectinate line gives origin to pectineus muscle. So here there is iliacus and here there is pectineus, here there is sartorius, here psoas major. Okay, now this psoas major, iliacus, sartorius, pectineus, all these things will come in femoral triangle. We will discuss later on. So coming to the outer surface, inner surface दो division देख लिया हमने. Outer surface of the ilium, outer surface of the ilium, it is divided into certain areas by certain line. This is the posterior gluteal line, this is the anterior gluteal line, and this is the inferior gluteal line. Behind posterior gluteal line, this narrow flick, this is for the origin of gluteus maximus. This middle zone is for gluteus medius, and this largest zone is for gluteus minimus. Largest, but for minimus. Why so? Because here there is femur, attachment of femur. Femur have a gluteal tuberosity. So it goes to the gluteal tuberosity like this. Medius covers the minimus, and maximus covers the medius. So maximus is largest, उससे छोटा medius, उससे छोटा minimus. But the point of origin for minimus is larger than maximus and medius. Now below the inferior gluteal line, here there is origin for a muscle that is called as rectus femoris. So muscles here we have seen gluteus maximus, gluteus medius, gluteus minimus, rectus femoris. Okay, rectus femoris vastus मतलब quadriceps femoris का पार्ट है और ये तीन gluteal muscle का पार्ट है. Now coming to the other muscles, here we have seen iliacus, here we have seen psoas major, this is pectineus. Here there is a muscle that is called as adductor longus and below that there is adductor brevis. Okay, now coming to the posterior aspect, ये तो pubis का थोड़ा आ गया. अभी ischium का थोड़ा देखते हैं. Ischium में this part is called as ischial tuberosity. This ischial tuberosity further divided into two areas, upper quadrangular and lower triangular by a thin line. This is upper quadrangular, orange कर देता मैं इसको. This part is upper quadrangular area, नीचे का जो रहेगा that is lower triangular. This upper quadrangular is again divided by, you can see there is a line that divided into two areas, upper and lower. Upper quadrangular again divided into upper triangular and lower triangular. They are responsible for origin of semi membranosus and semi tendinosus. Semi म्हणजे आधा मेम्ब्रेन जैसा और आधा टेंडन जैसा. कैसा है? अगर हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो कुछ ऐसा है, जैसे ये आधा मेम्ब्रेन जैसा समझो, ये आधा सेमी टेंडनोसस और ये सेमी मेम्ब्रेनोसस. ये टेंडन स्ट्रिंग जैसा जा रहा है और मेम्ब्रेनोसस उसको लपेट के. सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडनोसस इज हियर. हियर देयर इज बाइसेप्स femoris एंड बाइसेप्स femoris कंटिन्यू. बाइसेप्स femoris के बाद इधर शुरू होता है adductor magnus. दिस इज ischial fiber of adductor magnus. Then this is ramus fiber of adductor magnus and this is pubic fiber of adductor magnus. So adductor magnus has got three fiber: ischial fiber, ramus fiber and pubic fiber. Ischial fiber belongs to hamstring group of muscle, but ramus fiber and pubic fiber they belong to adductor group of muscle. Same muscle, two different group of muscle में जा रहा है. ये ग्रुप कैसे डिवाइड होता है? अकॉर्डिंग टू द कंपार्टमेंट ऑफ द मसल, वो क्या मूवमेंट करा रहा है उसके हिसाब से. तो जो ये ischial फाइबर है, दे बिलोंग्स टू हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल. मतलब हैम, ये एरिया को हैम बोलते हैं. मटन के शॉप में हैम बर्गर वगैरह नाम सुना होगा. तो ये हैम में स्ट्रिंग जैसा मसल, हैम एरिया मतलब पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, इसको हैम बोलते हैं. हैम का स्ट्रिंग जैसा मसल, उसके कॉमन ओरिजिन क्या है? ischial tuberosity. बट जो ramus और pubis, यहाँ से जो एडक्टर मैग्नस का ओरिजिन हो रहा है, वो दैट बिलोंग्स टू एडक्टर. एडक्टर मतलब एडक्शन करा रहा है, पैर को विश्राम से सावधान में ला रहा है. विश्राम से सावधान में ला रहा है. दैट मसल इज, दोज आर एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल. तो एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल में क्या है? अभी मैंने बोला इधर एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस और अभी हमने देखे एडक्टर मैग्नस के कौन से फाइबर? रैमस के फाइबर और प्यूबिस के फाइबर. क्योंकि ischial फाइबर हो जाएगा हैमस्ट्रिंग. अब और मसल रहता है यहाँ पे. और मसल क्या है? देयर इज ग्रेसिलिस जो कि एडक्टर ग्रुप में जाएगा. अब ये ऑब्चुरेटर फोरामेन है. तो ऑब्चुरेटर फोरामेन को अंदर से
कोई मसल कवर कर लेता है और बाहर से कोई मसल कवर कर लेता है। कवर करने के बाद इतना ही खुला रहता है, इतना ही पार्ट खुला रहता है, अंदर से कुछ कवर कर लेता है, बाहर से कुछ कवर कर लेता है, इतना ही पार्ट खुला रहता है, विच इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर कैनल। तो ये जो अंदर का मसल है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और बाहर से जो मसल रहता है दैट इज ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। दे आल्सो इन्वॉल्व इन एडक्शन टाइप ऑफ मूवमेंट, सो दे आल्सो बिलोंग्स टू एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल। दे विल बी सप्लाइड बाय एडक्टर नर्व दैट इज ऑब्ट्यूरेटर नर्व। और जो हैमस्ट्रिंग्स चार देखे थे, सेमी नेमिनोसा, सेमी टेंडोनोसा, बाइसेप्स फेमोरिस and ischial fiber of adductor magnus, they are supplied by posterior division of sciatic nerve। और ये जो हम एडक्टर मसल बोलेंगे, एडक्टर मसल में क्या क्या आ गया, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर माइनस के दो फाइबर दैट इज रामस फाइबर एंड प्यूबिस फाइबर, ग्रेसिलिस, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ये सबको सप्लाई कौन करेगा, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, जो कि मीडियल कंपार्टमेंट में। ओके, फिर आते हैं यहाँ पे और एक चीज हमने अभी देखे थे कुछ मसल, और यहाँ पे एक लिगामेंट है, लिगामेंट है इंगुइनल लिगामेंट। अब ये इंगुइनल लिगामेंट के नीचे से क्या पास होता है, यहाँ से जा रहा है इलियाकस, यहाँ से जा रहा है सोअस मेजर, यहाँ से पेक्टिनेट लाइन से पेक्टिनियस, और यहाँ से एडक्टर लॉन्गस। तो ये चार मसल यहाँ से पास हो रहा है, और ऊपर है इंगुइनल लिगामेंट। ये चार मसल, सर्टोरियस कहाँ से, यहाँ से, सर्टोरियस यहाँ से। तो सर्टोरियस ऐसा है, इंगुइनल लिगामेंट ऐसा है, और यहाँ से चार मसल जा रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बना दैट इज फीमोरल ट्रायंगल, जिसका बेस है इंगुइनल लिगामेंट। फ्लोर में चार मसल है, जिसका एक मीडियल बाउंड्री भी बना रहा है दैट इज एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस के बाद पेक्टिनियस, पेक्टिनियस के बाद इलियाकस एंड सोअस मेजर। ये चार मसल इधर है। चार मसल में से फिर ट्रायंगल कैसे बना, ट्रायंगल अभी मैंने ये तीन मसल निकाल लेता है। ये है ट्रायंगल, एडक्टर लॉन्गस, सर्टोरियस एंड इंगुइनल लिगामेंट। और एडक्टर लॉन्गस को इंक्लूड करके और जो तीन मसल है, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, सोअस मेजर एंड इलियाकस, ये चार मसल फ्लोर भी फॉर्म करता है। ठीक है, तो एडक्टर लॉन्गस फ्लोर भी फॉर्म कर रहा है, और एडक्टर लॉन्गस मीडियल बाउंड्री भी फॉर्म कर रहा है। अब ये जो 4 लेन रोड है, ये 4 लेन रोड से एक गाड़ी पास होता है, जो गाड़ी को हम बोलते हैं वैन। वैन क्या है, वेन, आर्टरी, नर्व। यहाँ से पास होता है तीन स्ट्रक्चर इसके गोद में, दैट इज एक वेन, एक ब्लू है क्या, ये नर्व पकड़ लेते हैं, ये आर्टरी, और ये ये समझो ये 4 लेन रोड है। ये 4 लेन रोड सबसे ऊपर कौन है, एडक्टर लॉन्गस, और ये थोड़ा नीचे इसकी गोदी में पास हो रहा है तीन स्ट्रक्चर, वेन, आर्टरी, नर्व। वेन, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल नर्व। कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से फीमोरल ट्रायंगल में एंटर कर लिया। कहाँ से एंटर कर लिया, पेल्विस से थाई में एंटर कर लिया। और ये जो 4 लेन रोड है उसके ऊपर एक फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर क्या है, इंगुइनल लिगामेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ग्लूटियल रीजन। व्हाट इज द ग्लूटियल रीजन, फीमोरल ट्रायंगल एक डिसेक्शनल एरिया हो गया हमारा। नेक्स्ट इज ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन किसको बोलते हैं, ऑल द स्ट्रक्चर अंडरनीथ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इज कॉल्ड एज ग्लूटियल रीजन। अब इसका बाउंड्री कैसे होगा, इसका बाउंड्री हम ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो ऊपर एक कर्व दिखता है हमको ड्यू टू इलियक क्रेस्ट, और यहाँ से ओरिजिन होके आ रहा है, यहाँ से ओरिजिन ऐसा होके आ रहा है ग्लूटियस मैक्सिमस। तो इसका एक हमको प्रोमिनेंट आर्च दिखता है, और नीचे ग्लूटियल मसल एंड फैट मिला के एक फोल्ड बनता है, नीचे एक आर्च बनता है ग्लूटियल फोल्ड फैट के वजह से। तो ऊपर एक आर्च और नीचे एक आर्च, मीडियली पोस्टेरोमीडियन लाइन एंड लैटरली ये जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके नीचे तक। तो ये एक टोटल ओवल बनता है। ये ओवल एरिया है ग्लूटियल रीजन का बाउंड्री। अब आते हैं कंटेंट में। कंटेंट में क्या क्या है, अगर हम दूसरे बुक के हिसाब से जाएंगे, मोर ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस में जाएंगे, ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस में या क्लासिकल प्रोसेस में कैसा बोला जाता है, सुपीरियर टू इंफीरियर या मीडियल टू लैटरल। वहाँ पे याद रखना बहुत मुश्किल होगा। हम एक ट्रिक अपनाते हैं, मेरे बुक में भी वैसे ही दिया है, सिर्फ लॉजिक नहीं बताया गया। दैट फर्स्ट विल सी द बोनी एरिया। बोनी एरिया देखने के बाद हम देखेंगे वो बोनी एरिया से कौन से मसल ऑरिजिन हो रहा है। फिर हम देखेंगे वो मसल को कौन से आर्टरी सप्लाई करता है, कौन सा नर्व सप्लाई करता है, कौन सा वेन ड्रेनेज लेके आ रहा है, और बाद में देखेंगे लिगामेंट्स। लिगामेंट्स अभी भी मैंने बताया नहीं, बताऊंगा एक साथ ही ग्लूटियल रीजन पढ़ते हुए बता दूंगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या मसल है, ग्लूटियस मैक्सिमस। मसल के नीचे क्या स्ट्रक्चर है देख लेते हैं। मसल के नीचे स्ट्रक्चर है इलियक क्रेस्ट, ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये ग्लूटियल लाइंस, ये ग्लूटियल सरफेस, ये एसिटाबुलर मार्जिन, ये एंटेरोसुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ पे क्या है, ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये एसिटाबुलम, ischial tuberosity, ischial spine, greater sciatic notch, then you have here sacrum, ठीक है। सैक्रम के एला, सैक्रम के फोरामेन ऑफ नेट का सैक्रम इन शॉर्ट बोल दो, सैक्रम है। यहाँ पे इस्चुप्यूबिक रैमस है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के साथ।
ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अब देख लेते हैं यहाँ पे मसल कौन से है। ऑलरेडी यू हैव सीन, अभी देखो ये बोनी एरिया हो गया 8-10। मसल क्या है, एक ग्लूटियस मैक्सिमस, देन मीडियस, देन मीनियस। यहाँ पे क्या था, रेक्टस फीमोरिस, ठीक है। फिर मसल ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी से 4 है, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडोनोसस, बाइसेप्स फीमोरिस, फिर ये रैमस से एडक्टर मैग्नस, देन हियर ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, देन ये साइड में ये जो ग्रेटर साइटिक नॉच है, ये नॉच को फोरामेन में कन्वर्ट करता है, एक छोटा सा मसल है, दैट मसल इज कॉल्ड एज पायरिफॉर्मिस। दिस पायरिफॉर्मिस टर्न दिस साइटिक नॉच इनटू साइटिक फोरामेन। फोरामेन बनने के बाद यहाँ से साइटिक नॉच पास होता है, तो ये पायरिफॉर्मिस भी आएगा। यहाँ पे 2 मसल और है, गैमेलस सुपीरियर एंड गैमेलस इंफीरियर। ट्विन मसल बोलते हैं, गैमेलस सुपीरियर एंड गैमेलस इंफीरियर। सो ऑल दीज मसल्स विल कम। पहले हम बोनी एरिया देख लिए 10, और उसके बाद हम देख रहे हैं मसल्स। उसके बाद आते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या क्या है, देखो यहाँ पे ये एसिटाबुलम है, इधर पे हेड ऑफ द फीमर जाके अटैच होता है। तो इसमें 3 बोन है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। बहुत सिंपल है, इलियम से फीमर तक आ रहा है, इलियोफीमोरल। इस्चियम से फीमर तक, इस्चियोफीमोरल। प्यूबिस से फीमर तक, प्यूबोफीमोरल। कैप्सुलर लिगामेंट तो फ्री है, कोई भी जॉइंट, एनी साइनोवियल जॉइंट विल हैव अ कैप्सुलर लिगामेंट। 4 लिगामेंट हो गया, कैप्सुलर लिगामेंट, इलियोफीमोरल, इस्चियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल। अभी यहाँ पे जो खड्डा है, ये फीमर के हेड के खड्डे से एक लिगामेंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंटम टेरिस कैपिटिस फीमोरिस, व्हिच कम्स फ्रॉम फोबिया कैपिटिस फीमोरिस। कैपिटिस फीमोरिस, कैपिट मतलब कैपिटल से आया, दैट इज हेड। हेड के जो फीमर के हेड, दैट इज कैपिटिस फीमोरिस। टेरिस मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट, जो गोल टाइप लिगामेंट होता है, जैसे हमने देखा था लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस, वो सबसे स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे लिगामेंटम टेरिस कैपिटिस फीमोरिस स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। इसके वजह से हिप जॉइंट का डिसलोकेशन इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट लोकेशन, बिकॉज इटसेल्फ बॉल एंड सॉकेट डायरेक्टली अटैच्ड बाय स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, दैट इज लिगामेंटम टेरिस कैपिटिस फीमोरिस। तो 5 हो गया, कैप्सुलर लिगामेंट, इलियोफीमोरल, इस्चियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल, देन लिगामेंटम टेरिस कैपिटिस फीमोरिस, हो गया 5। अभी इधर एक लिगामेंट रहता है, मैंने बोला सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट है, सैक्रो इलियक लिगामेंट। इधर एक लिगामेंट रहता है इंगुइनल लिगामेंट। ये सारे हैं हिप बोन के लिगामेंट्स। उसमें से इंगुइनल लिगामेंट उतना, क्योंकि ये हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूटियल रीजन बोल रहे थे, इंगुइनल लिगामेंट सामने नहीं है, बट बाकी जो सारे लिगामेंट बोला 5 और 1 6। तो हमारा देखो 10 एक बोनी एरिया हुआ था, 12 मसल्स हुए थे और 6 लिगामेंट्स हो गया, सब ग्लूटियल रीजन का ही। अब देखो ये मसल को कौन सप्लाई करेगा, 2 आर्टरी है, सुपीरियर ग्लूटियल एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। नर्व कौन सप्लाई करेगा, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। गैमेलर सुपीरियर है, गैमेलर इंफीरियर है, सुपीरियर गैमेलर आर्टरी, सुपीरियर गैमेलर नर्व, इंफीरियर गैमेलर आर्टरी, इंफीरियर गैमेलर नर्व, सेम वेन। देन यू हैव इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इसको सप्लाई कौन करता है, नर्व सप्लाई, साइटिक नर्व। देन यू हैव एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल, उसको कौन सप्लाई करता है, ऑब्ट्यूरेटर नर्व। यहाँ का आर्टरियल सप्लाई क्या है, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। वेनस ड्रेनेज क्या है, ऑब्ट्यूरेटर वेन। तो ऐसे तुम क्या करना, पहले बोनी एरिया लिखे, फिर मसल्स लिखे, फिर क्या लिखना, आर्टरी या नर्व। तो लॉजिक लगाना, हमने जो जो मसल्स बोले, पहले तो बोनी एरिया लिखना, फिर देखना कि ऊपर मैंने जो बोनी एरिया देखा है, अच्छा ये बोनी एरिया का ये मसल है, ये बोनी एरिया का ये मसल है, ऐसे करके करके मसल नीचे लिख लेना। फिर मसल, ये मसल के कौन से नर्व सप्लाई है, आर्टरियल सप्लाई है, वेनस ड्रेन। लिगामेंट्स तो अलग से याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके तुम देखोगे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट हो जाएगा, व्हिच इज more than sufficient for any LAQ. 50 points is more than sufficient. But ये 50 चीज को तुम अगर haphazardly याद रखने जाओगे, haphazardly in the sense they think that that is logical, but superior to inferior. But superior to inferior नोट गिनने जैसा देखने जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है, यहाँ पे 500 के नोट, फिर 20 के नोट, फिर 10 के नोट, फिर 100 के नोट, फिर 50 के नोट, ऐसा है। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 100 के नोट, 50 के नोट, 500 के नोट, 20 के नोट, सब अलग अलग गट्ठे बनाने पड़ेंगे। फिर अगर गिनेंगे तो याद रखना आसान होगा, हिसाब रखना आसान होगा। तो ऐसे करेंगे 500 के नोट मतलब पहले बोन एरिया, फिर मसल एरिया, फिर नर्व, आर्टरी, वेन, ऐसे करके देखेंगे तो ग्लूटियल रीजन, दैट इज आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्शन है, दैट इज पेल्विस। हमने अभी भी देखे थे कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनता है पेल्विक ब्रेन, तो पेल्विक के पीछे रहता है, ये सैक्रम है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बॉर्डर, फिर इलियो प्यूबिक एमिनेंस, इलियो प्यूबिक एमिनेंस के बाद ये अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस, वापस ये साइड के अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस, देन इलियो प्यूबिक एमिनेंस, इंटरमीडिएट बॉर्डर, देन सैक्रम। ये जो ब्रिम बन रहा है, दिस इज ट्रू पेल्विस। इसके ऊपर देखो एक पार्ट रह रहा है जो सिर्फ इलियम से कवर्ड है, व्हिच इज ऑलमोस्ट मोर देन 5 सेंटीमीटर। ये जो थिकनेस है इलियाक फॉसा का, द डिस्टेंस फ्रॉम इलियाक क्रेस्ट टू इलियो प्यूबिक एमिनेंस, ये जो डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द एरिया, दैट इज द एरिया जो सामने से खाली है, नॉट प्रोटेक्टेड है। ये एरिया को हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस। ये फॉल्स पेल्विस एब्डोमिनल एरिया किसके अंदर आता है, राइट इलियाक फॉसा, हाइपोगैस्ट्रियम, लेफ्ट इलियाक फॉसा, तो दैट इज बिलोंगिंग टू एक्चुअली एब्डोमेन। ट्रू पेल्विस मतलब यूरिनरी ब्लडर, एम्प्टी यूरिनरी ब्लडर किसके अंदर रहता है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस की ये जो लाइन है इसके नीचे, यूटेरस,
नॉन प्रेग्नेंट लेडी का यूटेरस कहाँ पे रहता है? ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के लाइन के नीचे। लेकिन अगर हम बोलेंगे ओवरियन फॉसा में रहता है, वो कहाँ पे रहता है? यहाँ पे। यूरेटर का कुछ अंश कहाँ पे रहता है? ये फॉल्स पेल्विस। ये दीज आर द स्ट्रक्चर व्हिच आर सिचुएटेड एट फॉल्स पेल्विस, जैसे कि ओवरी सिचुएटेड एट फॉल्स पेल्विस, बट यूरिनरी ब्लैडर, एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर सिचुएटेड एट ट्रू पेल्विस। इसका डायमेंशन कुछ फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है। और एक मसल बोलना रह गया, मैं इंटेंशनली रखा था। यहाँ पे एक मसल ये जंक्शनल एरिया से आता है, लैटिसमस डॉर्सी, जो कि स्कैपुला के साथ हिप बोन को कनेक्ट करता है। अब मेल और फीमेल में तुमको फीमेल इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताया। वैसे तो ये रिदम मेंटेन करता है, जब हम राइट फुट आगे करते हैं तो राइट हैंड पीछे जाता है, सो दैट अ बैलेंस इज मेंटेन। दोनों एक साथ जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। तो ये मेंटेन कौन करता है? लैटिसमस डॉर्सी बिटवीन पेक्टोरल गार्डल एंड पेल्विक गार्डल, ये बैलेंस मेंटेन करता है। अभी फीमेल पेल्विस का डायमेंशन कुछ अलग है, ये थोड़ा ब्रॉड होता है। ये ब्रॉड होने की वजह से फीमेल के जो वॉकिंग रिदम इज वेरी मच डिफरेंट विद द मेल वॉकिंग रिदम, ठीक है। दैट इज मेनली ड्यू टू दिस। क्या मैंने देखा कि ये ग्रेटर साइटिक नॉच, यहाँ पे गैप ज़्यादा है। ये देखो, ये जो एरिया है, ये एरिया देखो फीमेल में काफ़ी ब्रॉड है और मेल में हो जाता है ये नैरो। तो इसके लिए मेल में क्या हो जाता है? मेल टाइप ऑफ पेल्विस जिसका, उसका नैरो होगा। फीमेल में भी मेल टाइप ऑफ पेल्विस हो सकता है। कैसे समझेंगे? लुक एट हर मैंडेबल, जिसका मैंडेबल मेल टाइप होगा उसका पेल्विस भी मेल टाइप होगा। पेल्विस अगर मेल टाइप है तो हम पहले से उसको एक प्रोग्नोसिस कर सकता है कि आपका शायद नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, मे बी यू मे रिक्वायर सीजरियन सेक्शन, CS बोलते शॉर्ट में, ठीक है। सो दिस आर इन शॉर्ट व्हाट इज द हिप बोन।